Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 6 of your book, that is Managerial Finance by Gitman 13th edition. In today's lecture the very first topic is basically the yield to maturity. As we have already discussed the concept of yield to maturity, that if someone will invest something by purchasing any sort of bond or any sort of any asset in which he will have to invest certain amount for a specific number of year, there will be certain interest, there will be certain return. And yield to maturity is a concept in which the sum of all the returns that a person will receive till the maturity of that security will be calculated. Means to say, if you will purchase a bond and start to get the interest for the first year, second year, third year, and let's suppose the total years to maturity is 5. So all the interest that you have taken in these 5 years and the value of the bond you are receiving at the end of the 5th year, the sum of all these stuff will create yield till maturity, yield to maturity. Fine. So in the concept of yield to maturity, we are going to consider the factor of return and years to maturity. Fine. If we will consider the return and years to maturity, there are 3 possible reasons. There are 3 possible returns. There are 3 possible graphical pictures of your activity. For example, in case that with the passage of time your return will increase, with the passage of time your return will increase, that is basically a normal yield curve. Normal yield curve is basically a situation in which when you will start your activity for more than one financial year, with the passage of time your return will increase. यानी हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि सर नॉर्मली होता भी ऐसे ही है कि जब हम ज़्यादा अरसे के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर, तो वक्त के साथ साथ हमारे रिटर्न में इजाफा होता रहता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट इफ़ अ पार्टी विल इन्वेस्ट अमाउंट फॉर 1 ईयर उसका रिटर्न भी सेम है, और एक बंदा जो 10 सालों के लिए कर रहा है उसका रिटर्न भी सेम है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. नॉर्मल सिचुएशन, अंडर द नॉर्मल मार्केट सिचुएशन, जब आप ज़्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है. डैट इज़ बेसिकली नॉर्मल यील्ड कर्व एज यू कैन सी ऑन योर screen. Fine. Then we have another concept, that is an abnormal situation that cannot lie in a normal market situation, but we may face or we may have certain rare cases in which these sort of situations will lie. अब इसमें कहानी ये है कि फ्लैट यील्ड कर्व के अंदर वक्त के साथ साथ आपके रिटर्न में कोई इंक्रीज नहीं आता. दैट इज़ बेसिकली द फ्लैट यील्ड कर्व. यानी जितना वक्त गुजरता जाता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, आपके यील्ड में कोई चेंज नहीं आता. फॉर एग्जांपल इट इज़ 6%, यू विल गेट द सेम 6% इफ़ यू विल इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर. दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन. यानी नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप 6% ही रिटर्न आपको मिलेगा, चाहे आप 1 साल इन्वेस्ट करें, 2 साल करें, 3 साल करें, 4 साल करें. हमेशा आपको नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होता है नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में, कि वक्त के साथ साथ 3% मिलेगा अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें. अगर आप 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करें आपको 4% मिलेगा. अगर आप 5 सालों के लिए कर रहे हैं आपको 5% मिलेगा. अगर आप 6 सालों के लिए कर रहे हैं आपको 6% मिलेगा. यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नंबर ऑफ ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईयर्स, आपका रिटर्न क्या करता जा रहा है, इंक्रीज़ करता है. ये नॉर्मल सिचुएशन है. लेकिन यहाँ पे फ्लैट यील्ड कर्व में क्या है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है आपका रिटर्न क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. यस, रिटर्न क्या है, फ्लैट है, सेम है, फिक्स है. देयर इज़ नो इंक्रीज इन योर रिटर्न.
and that is basically an abnormal situation. We have another abnormal situation in the market in which if you will invest for more than 1 year or a greater period of time, your return will decrease, and that is basically inverted yield curve. इन्वर्टेड यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जब आप ज़्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब आपको रिटर्न क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये भी एबनॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे ये देखें, आपके 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 8% मिल रहा है, लेकिन व्हेन यू इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर you have 6%. When you invested for, let's suppose, 3 years, you have only 2% interest या 2% return. So your yield is decreasing with the passage of time. और ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ज़्यादा अर्से के लिए किसी को कहें कि सर अगर आप मुझे 1 साल के लिए पैसा देंगे मैं आपको 6-8% रिटर्न दूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे पैसा 2 सालों के लिए दे दिया मैं आपका रिटर्न 6% करूंगा। ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। दैट इज़ नॉट द नॉर्मल सिचुएशन दैट वी कैन सी इन द मार्केट। मार्केट में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि सर अगर आप थोड़े देर के लिए मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, ज़्यादा रिटर्न दूंगा, लेकिन इन केस यू विल गिव मी द मनी फॉर 2 ईयर और 3 ईयर, योर रिटर्न विल इंक्रीज। तो कहेगा नहीं सर मुझसे आप थोड़े अरसे के लिए पैसे ले लें, क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ाते जा रहे हैं आपने मेरा रिटर्न कम कर दिया। तो ये नॉर्मल सिचुएशन। अब इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स या एक स्पेसिफिक ईयर में आपने अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है कि लोग मार्केट में इन्वेस्ट करें। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आफ्टर एवरी 5 ईयर यू हैव द आइडिया दैट द गवर्नमेंट विल चेंज। अब जब 5वां साल आया, लोगों ने, क्योंकि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इकॉनमी अच्छी ग्रो नहीं कर रही थी, उस साल में सिर्फ आपने अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्केट की इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अच्छे होने से यू मे कंसीडर यूर सेल्फ एज अ नेक्स्ट कैंडिडेट, पोटेंशियल कैंडिडेट अगेन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपने चाहते हैं कि मुझे दोबारा इलेक्ट कर लिया जाए। अब जो 5वां साल था उसमें आपने क्या कर दिया, आपने यही सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट लिया है, जिसमें आपने कहा कि इस साल अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। लोगों ने धड़ाधड़ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें पता चल गया कि हमने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है एंड वी विल गेट 8% रिटर्न। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि एब नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यू हैड द स्पेसिफिक पर्पज़ इन योर माइंड। आपको एक ख़ास कोई वजह थी जिस वजह से आपने कहा कि नहीं सर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें आप किसी तरीके से, हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो लोगों ने उसी साल स्टार्ट कर दी इन्वेस्टमेंट एंड दे गॉट द हाईएस्ट रिटर्न। फाइन। तो दैट वाज द 3 yield curves that we have in our chapter. Then we have the concept of expectation theory. Expectation theory is basically a concept in which the market is performing the activity according to the expectations of the investor. एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या है, सिंपल सा वर्ड, इसके नाम के अंदर इसका जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी मार्केट हमेशा उस लिहाज से काम करेगी जिस लिहाज से उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय द इन्वेस्टर्स। हम मार्केट में चाह रहे हैं कि सर आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई मनी फॉर 5 years, लेकिन मुझे उसका रिटर्न ज़्यादा मिले, क्योंकि एक बंदा जो सिर्फ 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न कम है, उसका रिटर्न 6% है लेट्स सपोज, लेकिन मैं पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में 5 सालों तक मैं अपना पैसा मार्केट को दे दूँगा, तो एटलीस्ट मुझे 6% नहीं, मुझे 8% तो दें। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस मार्केट से कि इस मार्केट को मैं 1 साल के लिए पैसा नहीं दे रहा, मैं 5 सालों के लिए इसे पैसा दे रहा हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट शुड गिव मी 8% रिटर्न। अब ये क्या है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं चाह रहा हूँ कि एक मार्केट ऐसे सिक्योरिटीज़ क्रिएट करे फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट कि जिसमें मेरा पैसा सिर्फ 1 ईयर के लिए आए, मुझे ज़्यादा अरसे के लिए पैसा मैं नहीं बाउंड करके रख सकता, मैं 1 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो ये क्या है? दैट इज़ बेसिकली माई एक्सपेक्टेशन थ्योरी स्टेट्स दैट द मार्केट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। जब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप काम करेंगे तो नहीं, आपको जब एक्सपेक्टेशन का पता चल जाएगा तो आप उसी हिसाब से उसी किस्म की सिक्योरिटीज़ अपने लिए लेके आने लग जाएंगे। ठीक हो गया? देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ बेसिकली द लिक्विडिटी प्रेफरेंस theory. What is the liquidity pref? Liquidity means how easily, how कन्वीनियंटली यू मे कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश। यानी मैं अगर कोई एसेट परचेज़ करता हूँ, मैं अब उस एसेट्स में कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसमें हम वो कहते हैं ना मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है कि आप किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर ये या शेयर्स परचेज़ कर लेते हैं। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है। मैंने अब बॉन्ड परचेज़ कर लिया या शेयर परचेज़ कर लिया, कितनी आसानी से मैं उसे कैश में कन्वर्ट करूँगा। इट इज़ बेसिकली द लिक्विडिटी। यानी मैंने अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान स्टेट बैंक का मैंने एक बॉन्ड ख़रीदा है, अब मुझे क्या श्योरिटी है कि जब भी मैं इस पैसे को या इस बॉन्ड को चाहूँ तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश के अंदर। कितना आसानी से मैं इसे कैश में कन्वर्ट, ये दैट इज़ बेसिकली द फीचर ऑफ लिक्विडिटी। How conveniently, how easily I can convert a security. Security can be a bond, security can be a shares. मैं किसी कंपनी का शेयर परचेज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे कितनी आसानी से मैं उस शेयर को सेल कर सकूँगा। ऐसा वक्त तो नहीं आ जाएगा कि मैं कहूँगा यार मैंने सेल करना है अपना शेयर, वो कहे सर कोई भी नहीं ख़रीदता, कोई ख़रीद ही नहीं सकता सर, कोई लेना ही नहीं चाहता इस शेयर को। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि कितनी आसानी से मैं अपने पैसे को अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करूँ। प्रेफरेंस थ्योरी, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। व्हाट इज़ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी? ऑलवेज द इन्वेस्टर prefers to invest the amount in a security that may be converted into cash frequently, conveniently, easily। यानी ऐसी सिक्योरिटी के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट का दिल करता है कि जब आपको पता है कि सर परेशान ना हो, आपको जैसे ही पैसे चाहिए होंगे ये आसानी से तो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। और ये क्या है? ये नॉर्मल फिनोमिना है। दैट फिनोमिना कैन बी अप्लाइड इन एनी इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कोई इन्वेस्टर को अगर हम कहें ना कि सर ये जो आप सिक्योरिटी परचेज़ करें ये इतनी आसानी से कैश पे कन्वर्ट नहीं होगी, वो कहेगा सर मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता इस पर, क्योंकि यू विल क्रिएट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। उसके सामने आपने तस्वीर बना दी है कि सर इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी इन टू कैश। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे क्या ज़रूरत है, जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी आप मुझे कह रहे हैं आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहता है कि हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट लेके आओ जिसमें जब भी बंदे को ऐसा चाहिए वो फ़ौरन उसे कैश में कन्वर्ट करे। जो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर liquidity preference theory. Then we have the another theory that is your market segmentation theory. As long as the market segmentation theory is concerned, in market segmentation theory हमने पूरी मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आप ये कहें कि सर ऑन व्हाट ग्राउंड यू डिवाइडेड द मार्केट इनटू सेगमेंट्स विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट। यानी जिस किस्म के इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे उस लिहाज से हम क्या करेंगे, सेगमेंट्स बना देंगे। अब कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा वो कहेगा नहीं सर मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस इन्वेस्ट करके रख दूँ और बस थोड़ा थोड़ा मुझे रिटर्न मिलता रहे, मैं 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। अब 20 साल वाली सेगमेंट अलहदा होगा, 1 ईयर इन्वेस्टमेंट अलहदा हो गया। कोई चाह रहा है कि सर आप मुझे ना थोड़ा इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न दे दें, लेकिन क्या कहते हैं ऐसी सिक्योरिटी करें जो बड़ी जल्दी लिक्विडेट हो जाए। एक बंदा कह रहा है नहीं सर आप मुझे ऐसा करें, सिक्योरिटी चाहे मुश्किल में दे दीजिए जो आसानी से कन्वर्ट ना हो सके कैश, लेकिन मुझे रिटर्न आप फिर ज़्यादा दें। अगर मैं ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करूँगा मुझे रिटर्न आप ज़्यादा दें,
चाहे वो मुश्किल से कन्वर्ट हो कैश के अंदर, मैं रेडी हूँ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इस शर्त पे कि मुझे रिटर्न मिलेगा ज़्यादा। तो ऐसी में आपने ये अब 2 सेगमेंट और आपने बना दिए। मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी क्या है कि मार्केट के अंदर कभी भी एक नेचर का इन्वेस्टर नहीं होगा। हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपना, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस में, हमने कहा था प्रॉफिट लविंग इन्वेस्टर, एंड देन वी डिस्कस्ड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। हमने 2 टाइप के इन्वेस्टर्स पढ़े थे, एक प्रॉफिट लविंग था, एक कंजर्वेटिव था। प्रॉफिट लविंग क्या कहता था कि सर पैसा मुझे ज़्यादा मिले चाहे जितना मर्ज़ी इंतज़ार करना पड़े। कंजर्वेटिव कहता था कि सर मुझे पैसा चाहे कम दे दें लेकिन मेरे पैसे की लिक्विडेशन के प्रोसेस तेज़ रखें। यही सिचुएशन मार्केट सेगमेंटेशन में है कि जब भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक जैसे इन्वेस्टर आपको नहीं मिलेंगे, मुख्तलिफ टाइप के इन्वेस्टर्स मिलेंगे और आपको उनके मुताबिक अब डिफरेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्च करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? कॉर्पोरेट बॉन्ड का है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, अब आपने एक मेजर चीज़, एक मेजर कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है, उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बॉन्ड हमेशा डिपेंड करता है इंडेंचर पे। नाम बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन बॉन्ड इंडेंचर का जो मीनिंग है वो बड़ा आसान है। इंडेंचर मीन्स व्हाट इज़ द टर्म एंड कंडीशंस फॉर द बॉन्ड। बॉन्ड की टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, इसे इंडेंचर कहते हैं। और हमेशा बॉन्ड अपने इंडेंचर पर डिपेंड करता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, और आपके चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल किस नेचर के बॉन्ड के होंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। बॉन्ड यूँ होता है कि आपने अपना $1,00,000 इन्वेस्ट किया एक बैंक के अंदर, बैंक ने आपसे कहा कि आप हमें 1,00,000 रुपए दें, इसके बदले में हम आपको एक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं जिसे हम बॉन्ड का नाम दे देते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट या ऐसे भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आप किसी को एक पीस ऑफ पेपर, ये जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे और वो आपको एक एसेट दे देगा। अब उसके फीचर्स क्या हैं? अब फीचर्स को समझना है और आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। आपने बैंक को जाके 1,00,000 रुपए दिए, उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर दे दिया, उसकी अंदर टर्म एंड कंडीशन, इट मीन्स द इंडेंचर। इंडेंचर क्या था कि सर ये बॉन्ड है 3 इयर्स का, हम आपको 10% देंगे पर ईयर, एंड एट मेच्योरिटी, जब ये बॉन्ड मेच्योर होगा, मेच्योर कब होगा? 3 साल बाद, जब इसकी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी हो जाएंगी। एट मेच्योरिटी यू विल रिसीव द प्रिंसिपल एज वेल, आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या है? वो 1,00,000 रुपये प्रिंसिपल है जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एक बंदा जो स्टूडेंट नहीं होगा फाइनेंस का, वो तो कहेगा कि सर 1,00,000 का 10% क्या है? मुझे 1,00,000 का 10% बन गया 10,000, फिर 10,000 यानी मुझे 1 साल बाद वो देंगे 10,000। आफ्टर 2 ईयर आई विल रिसीव 10,000, आफ्टर 3 ईयर आई विल रिसीव 10,000, and at the end of the 3rd year I will receive 10,000 plus the principal, that is $1,00,000। ये जिसे मेरी बात समझ नहीं आई वो ये सारी बात ज़रा वीडियो पीछे करके दोबारा देखें ताकि उसे सारी बात समझ आ जाए। एक बच्चा जो कि स्टूडेंट नहीं है फाइनेंस का, दैट पर्सन विल से कि सर मुझे तो ये $10,000 दे रहे हैं 1 साल बाद, फिर 10,000 दे रहे हैं 1 साल बाद, फिर 10,000 दे रहे हैं 1 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद।
मुझे तो टोटल मिल गया 30,000 मुझे ड्यूरिंग 3 years मिल गया और 3 सालों के बाद मुझे मेरा प्रिंसिपल भी वापस मिल गया। आई विल रिसीव $1,30,000 आई शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। हमें पता है कि ये जो पैसे मिलेंगे 1 साल बाद, पैसे मिलेंगे 10,000 2 साल बाद, पैसे मिलेंगे 10,000 आफ्टर 3 year, और ये जो 1 लाख मिलेगा एट द एंड ऑफ 3 year, ये डी वैल्यू हो रहा है ड्यू टू द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। हमें ये बात कंफर्म है कि सर इन्फ्लेशन इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, और हर मरतबा जब भी हम कैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी। वो वक्त के साथ साथ उस पैसे से वो वर्थ नहीं रहेगी जो आज उस पैसे की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डी इन्फ्लेशन की परसेंटेज मालूम करेंगे। लेट्स सपोज आपका पैसा 9% डी वैल्यू हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट इज़ 9%। हम कहते हैं कि सर ये जो एक, अब मेरी बात समझे गौर से, आपको ये 10,000 मिलेगा आफ्टर 1 year, 1 साल बाद आपको 10,000 मिल रहा है। आप यहाँ पे एक टाइम, ये जो है ना टाइम लाइन ड्रॉ कर लें। ये हम 0 पॉइंट इन टाइम पे खड़े हैं, आज के पर खड़े हैं। हमें पैसा मिल रहा है 1 साल बाद, कितना पैसा मिल रहा है 10,000, क्योंकि हमें 10% इंटरेस्ट दिया गया है $1 लाख में। फिर हम 2 years के बाद हमें कितना मिलेगा, अगेन 10,000। 3 सालों के बाद हमें कितना मिलेगा, अगेन 10,000। और 3 साल के जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हमें हमारा प्रिंसिपल डेट इज़ 1 लाख विल बी गिवन टू अस। हमें अपना $1 लाख भी वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताएं कि 9% के हिसाब से इस पैसे की आज की वर्थ क्या है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सर ये जो 10,000 आपको 1 साल के बाद मिलना है, इसको हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000। फिर हमें दूसरी क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर 2 year, ये आफ्टर 1 year। ठीक है, फिर हमें ये मिल रहा है 10,000, इसकी अलहदा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर 3 year, and we will also calculate the present value of 1 lakh after 3 years। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख आफ्टर 3 year। जब हम तमाम की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कभी भी 1,30,000 नहीं आएगा। प्रेजेंट वैल्यू में वैल्यू कम आती है, यानी इस 10,000 जो हमें 1 साल बाद मिल रहा है, जब इस पे 9% के हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर कम आएगा। मैं क्योंकि आप लोगों को समझाना सही तरीके से है, मैं यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करके ना पूरा इसका सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें ना, हमारी टाइम वैल्यू ने क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10,000 की। 10,000 क्या है, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 year, इनटू 1 प्लस आई कितना है 9%, इन्फ्लेशन रेट कितना है 9%। ठीक हो गया, और कितने साल के बाद हमें ये 10,000 मिलेगा, आफ्टर 1 year, तो यहाँ पे रेस टू द पावर -1। देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 1 plus 9% raised to the power -2। present value is equal to 10,000 1 plus 9% raised to the power -3। present value is equivalent to 1 lakh 1 plus 9% raised to the power -3। अब यहाँ पे भी 3 आएगा क्योंकि हर 3 साल बाद हमें हमारा 1 लाख भी वापस मिल जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कहते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक हो गया,
10,000 into 1 plus 9% bracket close raised to the power -1। हम इसे इज इक्वल टू दबाते हैं तो हमें आंसर आ गया 9174.3119। ठीक हो गया। इसके बाद यही सेम प्रोसेस हम दोबारा करते हैं। 10,000 into 1 plus 9% ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर -2, तो हमारे आंसर आता है 8416.79। ठीक हो गया। इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं, रेज टू द पावर 3, तो हमें आंसर मिलता है 7721.834। ठीक हो गया। इसके बाद हम वो जो हमारा 1 लाख मिलता है उससे भी, क्योंकि वो 3 साल बाद मिलना है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये आपकी जो वैल्यू आ रही है 1 लाख का भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख इंटू 1 प्लस 9% ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर -3। इसका आंसर आ गया 218.34। ठीक हो गया। अब बस ये आंसर है। अब आप क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे। अब हम आराम से इसे ऐड भी कर लेते हैं। 9174.3119 प्लस 8416.79 प्लस 7721.834 प्लस 77218.34। तो हमें टोटल वैल्यू जो मिल गई ना इस बॉन्ड की, जो हमने सारा अपना प्रोसेस किया, वो 102,531.2759। जब ये वीडियो आप देख रहे हो, आप साथ साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करते जाइएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये है कि हमें पता चल गया कि सर वो बॉन्ड जो आपको टोटल कितने पैसे दे रहा था, 1,30,000। जब हमने एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस इस चीज़ को देख रहे थे, एज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस जब हम इस चीज़ को देख रहे थे, हमने कहा कि सर ये 1,30,000 का बॉन्ड है, जबकि नहीं। हमने जब उसकी वैल्यू आज कैलकुलेट किया, हमें पता चला कि सर इसकी वैल्यू, इस बॉन्ड की टोटल वैल्यू जो है ना, वो 1,02,531। डेट इज़ द प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। जो हमें नज़र 1,30,000 आ रहा था, तो हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम क्या करेंगे, उस बैंक से जिससे हमने डिमांड, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, उससे हम जाके क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ठीक है, हम आपको 1,00,000 रुपये देते हैं, जिस पे आप हमें 10% इंटरेस्ट दीजिएगा, जिस पे आपने जो मैच्योरिटी बताई है वो 3 इयर्स की बताई है, यानी 3 इयर्स में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। सर व्हाट इज़ द पार वैल्यू? वो कहेंगे सर 1 लाख। पार वैल्यू क्या है कि जिस उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। पार वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड कितनी है, 1 लाख। और सर इसकी प्राइस कितनी है? वो कहेंगे सर हम आपको ये बॉन्ड 1,05,000 का देते हैं। जो स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस नहीं होंगे वो कहेंगे ठीक है सर, हमें 1,30,000 मिल रहा है, और आज कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं, 1,05,000। या इवन वो कहेंगे सर हाँ, वो कहेंगे 1,05,000 हमें लगाने पड़ रहे हैं और हमें 1,30,000 मिलेगा, तो हमें तो परचेज़ करना चाहिए। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आज की वर्थ इस बॉन्ड की 1,02,531 है, जबकि ये हमसे 1,05,000 तकरीबन
2500 ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वी आर नॉट विलिंग टू परचेज इट। लेकिन अगर वो आपसे कहेंगे कि सर हम आपको ये पार वैल्यू पे देते हैं, यानी हम इसे 1 लाख पे देते हैं, तब भी आप कहेंगे कि सर आज की जो इसकी वर्थ बन रही है वो कितनी है, 1,02,000, जबकि यही बैंक हमें वो बॉन्ड 1 लाख का दे रहा है, हमें इसको परचेज़ करना चाहिए। या अगर आपको कहते हैं कि सर हम आपको ये बॉन्ड 1,01,000 का देते हैं, चीज़ 1,01,000 की मिल रही है, जबकि उसकी जो प्रेजेंट वर्थ कितनी है वो है 1,02,000, तो आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को परचेज़ कर लेना है। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो मैंने आप लोगों को समझानी है, उसमें आपने वो आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट अभी मतलब इसका सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर हम ये बात डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकंड पार्ट इन अ सेंस कि जो इससे अगला नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम ये जो बातें आपको 2-3 समझानी है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया।